یہ کہانی ہے ایک امیر بزنس مین کی جس کا نام کم من کیو ہے۔ من کیو کو ایک بہت ہی بھیانک بیماری ہے جس میں وہ جب بھی کسی دوسرے انسان کو ٹچ کرتا ہے تو اس کے جسم پر خوفناک دانے پڑنے لگتے ہیں اور اسے سانس لینے میں بھی دقت ہوتی ہے، یہاں تک کہ وہ بے ہوش ہو جاتا ہے یا مر بھی سکتا ہے۔ من کیو بھی چاہتا ہے کہ اس کی گرل فرینڈ ہو، لیکن اپنی اس بیماری کی وجہ سے وہ لڑکیوں کو ٹچ نہیں کر سکتا اور اسی وجہ سے اس نے گھر میں اپنے آپ کو 10 سال سے قید کیا ہوا ہے۔ من کیو اپنے گھر سے باہر نہیں جاتا۔ اس کے پرسنل ڈاکٹر او نے علاج کرنے کی کوشش کی لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا، لیکن ایک دن اس کا ڈاکٹر من کیو سے کہتا ہے کہ وہ اپنی اس بیماری کے ساتھ جینا سیکھ لے۔ ساتھ ہی وہ من کیو کو ایک سمارٹ واچ دیتا ہے جس میں الگ الگ قسم کے رنگ ہوتے ہیں جو اس کی الرجی کی حالت کو بتاتے ہیں۔ بلو رنگ میں الرجی نارمل، یلو میں ہلکا سا اٹیک، اورنج میں من کیو کی ایئر ویز بند ہو جائیں گی اور ریڈ میں وہ کچھ ہی منٹس میں مر جائے گا۔ ایک دن پروفیسر ہانگ نامی سائنٹسٹ من کیو سے رابطہ کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اس نے اپنی ٹیم کے ساتھ مل کر ایک بہت ہی انٹیلیجنٹ روبوٹ تیار کیا ہے، اور کیونکہ وہ روبوٹ انسان نہیں ہے اس لیے من کیو جب بھی روبوٹ کو ٹچ کرے گا تو اسے کوئی اٹیک نہیں آئے گا۔ پروفیسر ہانگ اس روبوٹ کی قیمت $100 بلین بتاتا ہے۔ اگلے دن من کیو ہانگ سے ملنے اس کی لیب میں جاتا ہے اور جیسے ہی من کیو وہاں پہنچتا ہے تو وہ ایک روبوٹ کو دیکھتا ہے جو بہت ہی خوبصورت لڑکی کی طرح نظر آ رہا تھا۔ روبوٹ اپنا نام AJ3 بتاتی ہے جو پروفیسر ہانگ کی بنائی ہوئی ایک ایڈوانس روبوٹ ہوتی ہے۔ من کیو اس کو دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے اور پہلے تو وہ اسے ٹچ کرنے سے گھبراتا ہے، لیکن جب وہ اسے چھوتا ہے تو من کیو کو اس کے شریر پر کوئی بھی دانے نہیں آتے۔ یہ دیکھ کر من کیو بہت خوش ہو جاتا ہے اور AJ3 منصوبے میں فنڈ بھی لگا دیتا ہے۔ اگلے دن لیب میں پروفیسر کی ٹیم روبوٹ کو ٹیسٹ کر رہی ہوتی ہے۔ ٹیم کا ایک بندہ سوڈا کی بوتل پھینکتا ہے جس کی ایک بوند روبوٹ کے پروسیسر میں جا گرتی ہے جس سے شارٹ سرکٹ ہوتا ہے اور پروسیسر تباہ ہو جاتا ہے۔ پروفیسر اور اس کی ٹیم پریشان ہو جاتے ہیں کیونکہ اگلے دن AJ3 کو ڈیلیور کرنا تھا۔ اب روبوٹ کو ریپیئر کرنے میں بہت سارے دن لگ جائیں گے اور اس سے ان کی ڈیل کینسل بھی ہو سکتی ہے، اس لیے پروفیسر ہانگ ایک پلان بناتا ہے۔ اسے یاد آتا ہے کہ اس کی ایکس گرل فرینڈ GR جو کہ روبوٹ AJ3 کی پروٹوٹائپ ہے، اسے من کیو کو روبوٹ بنا کر بھیجنے کا سوچتا ہے۔ اگلے دن ہانگ GR سے ملنے جاتا ہے۔ پروفیسر ہانگ GR کو کہتا ہے کہ اگر وہ ایک دن کے لیے AJ3 بنے تو وہ اسے 10 ملین دے گا۔ یہاں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ GR بہت غریب ہے اور اسے پیسوں کی ضرورت ہے، اسی لیے وہ اس آفر کو ایکسپٹ کر لیتی ہے۔ پروفیسر اگلے دن GR کو لیب میں لے جاتا ہے اور اسے روبوٹ دکھاتا ہے۔ اس کے بعد سب مل کر اسے سکھاتے ہیں کہ AJ3 کس طرح سے کام کرتا ہے اور GR کو روبوٹ جیسے سیم کپڑے پہناتے ہیں۔ اس کے سر پر وگ اور آنکھوں میں لینس لگاتے ہیں جو کیمرے کی طرح کام کرتے ہیں۔ پروفیسر اور اس کی ٹیم کیمرے کی مدد سے GR کو مانیٹر کریں گے۔ اب GR کو سب سمجھانے کے بعد ایک لاکر میں بند کر کے من کیو کے گھر میں لایا جاتا ہے۔ من کیو جیسے ہی اسے لاکر سے کھولتا ہے تو GR اسے دیکھ کر ڈر جاتی ہے۔ یہاں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کچھ دن پہلے GR فوڈ کی ڈیلیوری دینے من کیو کے پاس جاتی ہے اور من کیو کو فوڈ کی کوالٹی پسند نہیں آتی، جس پر من کیو GR کو پیمنٹ کرنے سے انکار کر دیتا ہے۔ اسی لیے GR اس سے لڑنے لگتی ہے، لیکن من کیو اس سے فزیکل کانٹیکٹ سے بچنے کی کوشش کرتا ہے اور اسے دور پھینک کر وہاں سے نکل جاتا ہے۔ اب کیونکہ GR اسے دیکھ کر ڈر گئی تھی، اسی لیے من کیو پروفیسر کو کال کرتا ہے اور اسے پوچھتا ہے کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ یہ سن کر پروفیسر ہانگ ایک کہانی بناتا ہے اور کہتا ہے کہ AJ3 کے 2 موڈ ہے، آپریشنل اور فرینڈ موڈ۔ آپریشنل موڈ میں وہ پروفیشنلی کام کرتی ہے، جبکہ فرینڈ موڈ میں وہ ایک انسان کی طرح کام کرتی ہے۔ روبوٹ اب فرینڈ موڈ میں ہے، لیکن اسے ایک بٹن دبا کر آپریشنل موڈ میں بدلا جا سکتا ہے۔ من کیو پروفیسر کی بات مان لیتا ہے اور روبوٹ کی گردن کے پیچھے بٹن دبا دیتا ہے۔ GR کے ریسیٹ ہونے کے بعد من کیو اس روبوٹ کا انٹیلیجنس ٹیسٹ لیتا ہے۔ اسی وقت لیب کی بجلی چلی جاتی ہے جس کی وجہ سے GR کا پروفیسر سے رابطہ ختم ہو جاتا ہے۔ اب اسے اپنے آپ سے ہی من کیو کو مینج کرنا ہوگا۔ سب سے پہلے من کیو GR کو ایک باکس 3 منٹ کے اندر کھولنے کے لیے کہتا ہے جس کا پاسورڈ میتھ کے حساب سے معلوم ہونا تھا۔ GR کو میتھ بالکل بھی نہیں آتی تھی، اس لیے وہ ڈبے کو توڑ کر کھول دیتی ہے جس سے من کیو بہت حیران ہو جاتا ہے۔ دوسرے ٹیسٹ میں من کیو اسے 10 سیکنڈ کے اندر انڈے کو چھیلنے کا کہتا ہے۔ GR پہلے ایک ریسٹورینٹ میں کام کرتی تھی، اسی لیے وہ آسانی سے یہ کر لیتی ہے۔ من کیو اسے بہت خوش ہو جاتا ہے، اسی لیے وہ روبوٹ کے ہوشیار ہونے کی تعریف کرتا ہے۔ اسی وقت لیب میں بجلی واپس آ جاتی ہے اور جب وہ GR کے لینس سے کنیکٹ ہوتے ہیں تو وہ یہ دیکھ کر حیران ہو جاتے ہیں کہ GR من کیو پر غصہ ہو رہی ہے کیونکہ من کیو نے بیٹری چیک کرنے کے لیے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا تھا۔ یہ دیکھ کر پروفیسر گھٹنوں کے بل بیٹھ جاتا ہے۔ اسی وقت پروفیسر کو من کیو کا فون آتا ہے اور من کیو کہتا ہے کہ تم مجھے دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہو کیونکہ اس میں استعمال ہونے والی بیٹری خراب ہے جس کی وجہ سے AJ3 کا سینہ پھول گیا ہے۔ یہ سن کر پروفیسر ایک اور جھوٹ بول دیتا ہے
کہ इसने AJ3 की बैटरी को अपग्रेड किया है और साथ में मिनक्यू को खबरदार करता है कि वो इसके सीने को ना छुए, क्योंकि ऐसा करने से शॉर्ट सर्किट हो सकता है। इसके बाद मिनक्यू मेडिसिन लेने के लिए जाता है, लेकिन अचानक इसका दम घुटने लगता है और वो फर्श पर गिर जाता है। इसे सांस लेने में मुश्किल होती है। इसी वक्त जिया बाकर आती है और इसकी पीठ थपथपाकर इसकी मदद करती है। मिनक्यू जैसे ही होश में आता है तो वो हैरानगी से पूछता है कि बगैर मेरे ऑर्डर के इसने मेरी मदद कैसे की, जिस पर जिया कहती है कि वो बहुत सी ऐसी चीजें बगैर ऑर्डर के कर सकती है। इसके बाद मिनक्यू पहली मर्तबा फिजिकल कांटेक्ट करता है, लेकिन हैरत की बात यह है कि मिनक्यू को किसी किस्म की एलर्जी नहीं होती। रात होती है और जिया को लैब में लाया जाता है। प्रोफेसर होंग इसे डांटता है क्योंकि वो एक्सपोज हो चुकी थी। ये सुनकर जिया मायूस हो जाती है क्योंकि इसे लगता है कि इसने अच्छा काम नहीं किया और वो नाराज होकर बाहर चले जाती है। उसी वक्त प्रोफेसर को एक बुरी खबर मिलती है कि AJ3 को रिपेयरिंग के लिए अफ्रीका भेज दिया है और इसे वापस आने में कम से कम 2 हफ्ते लगेंगे। इसी वक्त मिनक्यू की कॉल आ जाती है और वो प्रोफेसर से कहता है कि इसे 1 महीने के लिए AJ3 चाहिए। वो रोबोट को मजीद डीपली समझना चाहता है। अब प्रोफेसर के पास जिया को वापस लाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा था, इसलिए वो जिया के पास जाता है और इसे कुछ हफ्तों के लिए रोबोट बनने का कहता है। इस बार वो इसे ज्यादा पैसे देने की पेशकश करता है, इसीलिए जिया राजी हो जाती है। प्रोफेसर कहता है कि जब तक असली AJ3 नहीं आ जाता तब तक तुम्हें काम करना पड़ेगा और हम तुम्हें हर रात रिचार्ज करने के बहाने लैब में वापस ले आएंगे। अगले दिन बदकिस्मती से जिया को डायरिया हो जाता है और वो मैनेज करने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन गलती से वो फार्ट कर देती है। मिनक्यू हैरानगी से पूछता है कि ये क्या आवाज है, जिस पर रोबोट जवाब देता है कि ये आपने किया है मेरे मालिक। जल्द ही गंध चारों तरफ फैल जाता है, इसीलिए जिया इसे कपड़े बदलने का कहती है। बोला बाला मिनक्यू इस पर यकीन कर लेता है क्योंकि इसके अलावा यहाँ और कोई इंसान नहीं है और वो कपड़े बदलने चला जाता है। इसका फायदा उठाकर वो भागकर वॉशरूम की तरफ निकल जाती है। मिनक्यू जल्दी से वापस आ जाता है और वो देखता है कि रोबोट गायब है। वो इसे घर में ढूंढने लगता है और आखिरकार वो देखता है कि जिया इसके महंगे परफ्यूम से टॉयलेट को साफ कर रही है। मिनक्यू ये देखकर हैरान हो जाता है और कहता है कि रोबोट तो पानी को हाथ नहीं लगाते, तो तुम ये सब कैसे कर रही हो। इस वक्त जिया झूठ बोल देती है कि वो एक एडवांस रोबोट है जो इन सभी कामों में माहिर है। जब मिनक्यू जाने वाला होता है तो वो नोटिस करता है कि जिया के चेहरे पर पसीना आ रहा है। वो इसके करीब जाने की कोशिश करता है, लेकिन इसका पैर साबुन पर आने की वजह से वो गिर जाता है। जिया इसकी तरफ भागती है, लेकिन मिनक्यू को बचाने की बजाय वो परफ्यूम पकड़ती है और इसके ऊपर गिरा देती है। लोहे की प्लेट की वजह से इसकी पसलियों पर चोट लग जाती है। अगले दिन जिया सफाई कर रही होती है तो वो गलती से कार्ड्स गिरा देती है, जिसे मिनक्यू ने 10 साल से संभाल कर रखा हुआ था। ये देखकर मिनक्यू गुस्सा होता है और इससे पहले कि वो मजीद इसे कुछ कहता, वो कहती कि इसकी बैटरी 5% तक पहुंच गई है और वो अपने आप को स्टैंड बाई मोड पर होने का बहाना करती है। इसके बाद मिनक्यू प्रोफेसर होंग से मिलता है और इसे कहता है कि रोबोट की गलतियों की वजह से वो बहुत परेशान हो गया है, लेकिन प्रोफेसर इसे कहता है कि इसे और डीप रिसर्च के लिए वक्त दिया जाए और मिनक्यू इस पर राजी हो जाता है। अगले दिन मिनक्यू का बहुत खसूसी मेहमान आने वाला था, इसलिए वो जिया को बाहर आने से मना करता है। वो कोई और नहीं बल्कि रिया इसकी पहली मोहब्बत थी। मिनक्यू इसे देखकर बहुत खुश होता है, लेकिन जब रिया इसके कंधे पर हाथ रखती है तो मिनक्यू के जिस्म पर एलर्जी होने लगती है और वो ये सब रिया से छुपाने की कोशिश करता है। इसके बाद वो एक इम्पोर्टेंट मीटिंग का बहाना बनाकर घर की तरफ भागता है ताकि वो किसी तरह इस कमरे में पहुंच जाए जहां इंजेक्शन रखा हुआ था। मिनक्यू बहुत कमजोर हो चुका था और वो सिरिंज पकड़ने में नाकाम रहता है। तभी जिया देखती है कि मिनक्यू जमीन पर लेटा हुआ है और इसे सांस लेने में मुश्किल हो रही है। इसी वक्त सीन शिफ्ट होता है और हमें वो वक्त दिखाया जाता है जब मिनक्यू को एलर्जी नहीं थी और मिनक्यू के लिए सब कुछ नॉर्मल था। छोटा मिनक्यू जब कार्ड्स का पहला घर बनाता है तो इसके पेरेंट्स बहुत खुश होते हैं। अगले सीन में हर कोई मिनक्यू के जन्मदिन पर इसकी पार्टी पर आया होता है। पार्टी के बाद सब कार में वापस जा रहे होते हैं, तभी एक बलून इसके बाप के सामने आ जाता है, जिसकी वजह से सामने आने वाला ट्रक इन्हें टक्कर मार देता है। अगले सीन में मिनक्यू हॉस्पिटल में उठता है। छोटा मिनक्यू अपने पेरेंट्स के लिए रो रहा होता है जो दोनों हादसे में मर गए थे। दिन के वक्त बहुत सारे रिश्तेदार इससे मिलने आते हैं और इसका बड़ा बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन असल में वो इसके बाप के पैसे का वारिस बनना चाहते थे। लेकिन जब मिनक्यू बाथरूम में जाता है तो इसे जेब से एक नोट मिलता है जिसमें लिखा होता है कि किसी भी पेपर पर सिग्नेचर नहीं करना। अगले दिन यूचुल नामी इसका एक दोस्त आता है और मिनक्यू के हाथ में एक अडॉप्शन पेपर देता है कि इसे इसके बाप ने भेजा है और अच्छा होगा कि अगर वो इसका भाई बन जाए। मिनक्यू थोड़ी देर सोचता है और आखिरकार वो कागजात पर सिग्नेचर कर देता है।
यूचुल अपने दोस्त का हाथ पकड़ता है, लेकिन जब मिनक्यू नीचे देखता है तो यूचुल का हाथ शैतानी पंजे में बदल रहा था। मिनक्यू डरकर वहाँ से भाग जाता है और देखता है कि यूचुल ने जहाँ से इसे पकड़ा था वहाँ अजीब से छाले पड़ने लगे हैं। थोड़ी देर बाद यूचुल अपने बाप के पास वापस जाता है और इसे कागजात देते हुए कहता है कि काम हो गया है। लेकिन जब इसका बाप आखिरी सफा देखता है तो इसे पता चलता है कि मिनक्यू ने सिग्नेचर की जगह कुछ और लिख दिया है। इसके बाद छोटा मिनक्यू एक खाली हवेली में जाता है और इस दिन के बाद वो दूसरे इंसानों से दूर रहता है, क्योंकि हर कोई इसकी प्रॉपर्टी हड़प करना चाहता था और वो दूसरे इंसानों को नाले का कीड़ा समझने लगा था, जिसकी वजह से इसे एलर्जी होने लगी थी। इसके पर्सनल डॉक्टर के अलावा एलर्जी के बारे में कोई नहीं जानता था। सीन दोबारा प्रेजेंट में आता है। मिनक्यू जागता है और अपने साथ जिया को पाता है। मिनक्यू इसे बताता है कि इसने ख्वाब देखा है जिसमें लोग इसके पीठ पीछे छुरा घोंप रहे हैं। इसके बाद वो ये जानकर हैरान हो जाता है कि वो बिल्कुल नॉर्मल हालत में है। इसलिए वो जिया का शुक्रिया अदा करता है क्योंकि इसने इसे इंजेक्शन दिया था। जिया और मिनक्यू एक दूसरे के साथ ज्यादा वक्त गुजारने लगे थे और इनका रिश्ता मजीद गहरा होता जाता है और वो एक दूसरे के करीब होते जाते हैं। एक दिन मिनक्यू इसे कहता है कि वो इसके साथ रिया की डेट पर जाए। वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत देर तक बैठते हैं। जैसे ही रिया वहाँ से जाने लगती है तो वो मिनक्यू को हाथ मिलाने का कहती है और फिर मिनक्यू डरते हुए इसका हाथ पकड़ लेता है, जिसकी वजह से इसे एलर्जी शुरू हो जाती है और सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। और जब वो अपना इंजेक्शन पकड़ता है तो वो इस सोच में पड़ जाता है कि इसे ये सिरिंज लगाना चाहिए या नहीं, क्योंकि वो इस बेकार जिंदगी से थक चुका था। इसकी स्मार्ट वॉच तेजी से बीप करने लगती है। जिया इसके पास आती है और वो होश में आ जाता है। जब जिया मिनक्यू को देखती है तो मॉनिटर नॉर्मल हो जाता है। मिनक्यू इंजेक्शन के बगैर ठीक हो जाता है। थोड़ी देर बाद वो दूसरे अपार्टमेंट में वापस जाने का फैसला करते हैं, लेकिन जब वो जा रहे होते हैं तो एक बंदा गलती से मिनक्यू से टकरा जाता है और वो चेक करने के लिए कि मिनक्यू ठीक है इसे पकड़ लेता है। लेकिन हैरानगी की बात ये है कि इसे एलर्जी नहीं होती। ये देखकर मिनक्यू ज्यादा हजूम में जाने का फैसला करता है ताकि वो खुद को चेक कर सके, क्योंकि ऐसा इसने 10 सालों में नहीं किया था। जैसे ही वो बाहर निकलते हैं एक बच्चा मिनक्यू के हाथ से टकराता है, लेकिन दोबारा कुछ नहीं होता। फिर दोनों एक बहुत बड़े हजूम में जाते हैं जहां मिनक्यू के साथ वाला शख्स इसका हाथ पकड़ता है और मिनक्यू मॉनिटर पर देखता है कि सब ठीक है। ये देखकर मिनक्यू की आंखों में पानी आ जाता है। इसके बाद वो डॉक्टर ओ को फोन करता है और रोते हुए कहता है कि इसकी एलर्जी खत्म हो गई है। तभी एक शख्स इससे टकरा जाता है, जिसकी वजह से मॉनिटर बीप करने लगता है। दूसरी तरफ जिया मिनक्यू को ढूंढना शुरू करती है। जब वो मिनक्यू को देखती है तो इसकी एलर्जी खत्म होने लगती है और जब एक जोड़ा इन दोनों के दरमियान में आता है तो एलर्जी फिर से वापस आ जाती है। मिनक्यू अपने डॉक्टर को बताता है कि कोई यहाँ पर है जिसे मैं देखता हूँ तो एलर्जी खत्म हो जाती है, और जब इसे नहीं देख पाता तो एलर्जी फिर से वापस आ जाती है। इसके बाद जिया मुस्कुराती है और मिनक्यू कॉल बंद कर देता है और जिया को गले लगा लेता है और कहता है कि मैं तुम्हारे लिए दुनिया की सबसे बड़ी बैटरी खरीदूंगा। इसके बाद वो डॉक्टर ओ से फोन पर बात करता है और इसे कहता है कि अब वो बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर भी हैरान है कि पहली बार मिनक्यू को एक इंसान के टच करने के बाद इंजेक्शन की जरूरत नहीं पड़ी। इसके बाद मिनक्यू जहाँ भी जाता है वो जिया को अपने साथ ले जाता है और इसे अपना सबसे अच्छा दोस्त समझता है। इसी दौरान एजे रोबोट रिपेयर हो जाता है, लेकिन इसे प्रोफेशनली काम करने के लिए कुछ वक्त लगेगा। प्रोफेसर कहता है कि एजे 3 कुछ दिन के बाद बिल्कुल ठीक हो जाएगा। जिया, जिसे मिनक्यू के साथ रहने की आदत पड़ गई थी, वो ये खबर सुनकर उदास हो जाती है। एक दिन मिनक्यू जिया को एक रेस्टोरेंट में ले जाता है, लेकिन इसे एक अलग मेज पर अकेले बिठा देता है। फिर वो रिया और इसके बाप को मिलता है। वो तीनों बातें कर रहे होते हैं तो वो दूर बैठी जिया परेशान नजर आती है। कुछ देर के बाद जब मिनक्यू इसे लेने आता है तो वो इसे नजरअंदाज करती है और चले जाती है। अब मिनक्यू तभी सेफ है जब वो जिया के पास हो, लेकिन एक दिन वो अकेला एक गैस स्टेशन पर जाता है और अटेंडेंट पीछे डिक्की में क्रेडिट कार्ड उठाता है। जब वो क्रेडिट कार्ड वापस करता है तो मिनक्यू की उंगली पर टच करता है, लेकिन इस पर ध्यान नहीं देता और वहाँ से चला जाता है। थोड़ी दूर जाने के बाद इसे याद आता है कि अटेंडेंट के हाथ के टच करने के बाद इसे कुछ भी महसूस नहीं हुआ और मॉनिटर बिल्कुल नॉर्मल है, हालांकि जिया भी इसके साथ नहीं है। इसके बाद क्यूमिन अपने प्रोफेशनल डॉक्टर को मिलने जाता है और इसे पिछले 10 सालों से इसकी मेहनत का शुक्रिया अदा करता है कि वो अब बिल्कुल ठीक हो गया है। इसके बाद डॉक्टर क्यूमिन से कहता है कि वो एजे 3 को वापस भेज सकता है क्योंकि अब वो मुकम्मल ठीक हो गया है। अगले दिन क्यूमिन प्रोफेसर के पास जाता है और कहता है कि वो रोबोट से मोहब्बत करता है। प्रोफेसर कहता है कि वो एक रोबोट के बारे में बात कर रहा है जो पहले से प्रोग्राम किया गया था। ये सुनकर मिनक्यू कहता है कि वो पागल हो रहा है और प्रोफेसर से इसका हल पूछता है। अगले दिन प्रोफेसर मिनक्यू के पास आता है और इसे कहता है कि एक रास्ता है, अगर वो एजे 3 को रीसेट कर दे, इसी तरह वो सब कुछ भूल जाएगी
और तुम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सकोगे। मिनक्यू उदास हो जाता है, लेकिन वो जानता है कि अब यही रास्ता बचा है। इसके बाद जीहा भी ये खबर सुनती है और वो भी परेशान हो जाती है। जीहा आखिरी बार AJ3 के कपड़े पहनती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जीहा मिनक्यू के सामने खड़ी है और बर्फबारी हो रही है और मिनक्यू इसे आखिरी बार सैर के लिए ले जाता है और वापस हवेली में ले आता है। आखिरकार वो एक दूसरे का सामना करते हैं। मिनक्यू इसका शुक्रिया अदा करता है। ये सुनकर जीहा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। इसके बाद मिनक्यू जीहा के पास जाता है और इसे अपनी माँ का हार निकालकर जीहा के गले में डाल देता है। इसके बाद वो इसे गले लगाता है और मिनक्यू रीसेट का बटन दबा देता है। लैब में असली AJ3 रिपोर्ट करता है कि मिनक्यू का फोल्डर डिलीट कर दिया गया है। रात को मिनक्यू और जीहा सोते वक्त रोते हैं। जीहा इतनी रोती है कि अगली सुबह वो बीमार पड़ जाती है। इसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है और हम देखते हैं कि इसने अभी भी मिनक्यू की माँ का हार पहन रखा है। इसके बाद वो दोनों अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाते हैं, जहाँ जीहा अपनी दादी के शहर चली जाती है, जबकि मिनक्यू रिहा के साथ शादी की तैयारी करता है। एक दिन मिनक्यू ट्रेन पर चढ़ता है, जहाँ वो AJ3 जैसा चेहरा देखता है और वो सोचता है कि ये वही सेम रोबोट है। दोनों एक दूसरे के आमने सामने बैठने के बावजूद कुछ भी बात नहीं करते, क्योंकि जीहा को मिनक्यू के साथ बोलने से मना किया गया था। लेकिन मिनक्यू को शक होता है कि ये वही रोबोट है, इसीलिए वो प्रोफेसर को फोन करता है और कहता है कि इसने AJ3 जैसा चेहरा देखा है। जिस पर प्रोफेसर कहता है कि इसने रोबोट को किसी ऐसे शख्स पर बनाया था जो इसका जानने वाला था। मिनक्यू कहता है कि क्या वो इससे बात कर सकता है, जिस पर प्रोफेसर इसे मना करता है। प्रोफेसर के मना करने के बावजूद भी ये इसका पीछा करता है और इसके साथ बात करने का कहता है, जिस पर जीहा मसरूफ होने का बहाना करती है। लेकिन मिनक्यू इसका इंतजार करने के लिए बैठ जाता है। इसी दौरान जीहा जल्दी से किचन में जाती है और अपने गले से हार उतारकर प्लेट में छिपा देती है। बहुत सारा टाइम गुजर जाता है, लेकिन मिनक्यू अभी भी वहाँ पर बैठा होता है, जिसकी वजह से जीहा इससे बात करने पर मजबूर हो जाती है और वो इसे बताती है कि इसने 4 साल पहले डॉक्टर होंग से पैसे लिए थे और तुम्हारे सामने रोबोट होने का नाटक किया था। मिनक्यू इससे मजीद पूछने की कोशिश करता है, लेकिन जीहा इसे कहती है कि वो यहाँ से चला जाए, वरना वो पुलिस को कॉल करेगी। मिनक्यू चालाकी से इसकी दादी से पूछता है कि क्या इसके पास रहने के लिए कमरा है, जिस पर वो औरत हाँ कह देती है और इसे रात को यहीं पर रहने देती है। अगले कुछ दिनों तक वो दादी के साथ अच्छे ताल्लुक बना लेता है, साथ ही जीहा की तवज्जो भी हासिल कर लेता है और इसे अपने साथ गुजारे वक्त की याद दिलाता है। एक दिन मिनक्यू रेस्टोरेंट पर जाता है और इसे पता चलता है कि जीहा यहाँ से जा चुकी है, इसीलिए वो यहाँ इसे हर जगह ढूंढने लगता है। आखिरकार वो इसे ढूंढ लेता है और इसे देखकर जीहा जल्दी से नेकलेस को छुपा लेती है, लेकिन वो नेकलेस देख लेता है। ये जानकर के इसके साथ धोखा हुआ है, इसे बहुत बुरा फील होता है, लेकिन इससे पहले कि वो इसे कुछ कहता, इसकी एलर्जी दोबारा से जाहिर होने लग जाती है और मॉनिटर रेड पर पहुंच जाता है, जो पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था। आखिरी सीन में वो जमीन पर गिर जाता है और इसके बचने के इम्कान बहुत कम होते हैं। यहाँ पर यह दिलचस्प मूवी खत्म हो जाती है। अगर आप इसका दूसरा पार्ट देखना चाहते हैं तो कमेंट में हमें जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए अलविदा।